Hello everyone, my name is Rizwan and this is my CBSE English video classes. I welcome you to these classes and today we will cover a topic in this video, that is story writing for class 10th. आज हम स्टोरी राइटिंग करेंगे जो क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में आता है. इट कैरीज 10 मार्क्स. ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन. ये आपके सेक्शन बी में आता है, राइटिंग और ग्रामर में. नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है. सो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है स्टोरी राइटिंग. वी हैव टू राइट अ स्टोरी in this question, but remember within the word limit of 150 to 200 words. हमारी word limit 150 to 200 words होनी चाहिए. So चलिए सीखते हैं कि हम stories कैसे लिखते हैं. Well, एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग. In this video I will teach you some strategies. कुछ strategies मैं आपको सिखाऊंगा. If you follow those strategies, I'm very sure कि आप लोग easily full marks इस question में score कर लेंगे. So सीखते हैं कि story कैसे लिखते हैं. So here we go. Now let's see कि आपकी स्टोरी का एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या है और उसकी मार्किंग स्कीम क्या है. So this is the format and marking scheme. So format में first of all you have to provide an appropriate title to the story you wrote. जो स्टोरी आपने लिखी है एग्जाम में, उसका आपको एक appropriate टाइटल प्रोवाइड करना होगा और उस टाइटल के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क एंड दैट कम्स अंडर फॉर्मेटिंग. और इसके मार्क्स होंगे आपको 1 नंबर आपको मिलेगा. आई सजेस्ट यू, आप स्टोरी पहले लिखेंगे, सो आई सजेस्ट यू कि ये जो टाइटल वाला टास्क है, टाइटल प्रोवाइड जो आपको करना है, ये स्टोरी के आखिर में पूरी स्टोरी समझ के प्रॉपर टाइटल तब प्रोवाइड करिएगा आप. सेकेंड, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्टेंट. नाउ कॉन्टेंट होता है 4 मार्क्स का. एग्जामिनर विल चेक योर कॉन्टेंट फॉर 4 मार्क्स. कैसे? आपका बिगनिंग ऑफ द स्टोरी देखा जाएगा. आपने स्टोरी को डेवलप कैसे किया है, हाउ हैव यू डेवलप्ड योर स्टोरी फर्दर. आपने स्टोरी का सीक्वेंस कैसे मेंटेन किया है. थर्ड, आपने उस स्टोरी को प्रॉपर कैसे एंड किया है. सो बिगनिंग, फर्दर डेवलपमेंट, स्टोरी को आगे ले जाना, प्लस आपने आपका एंडिंग. सो दिस इज अबाउट कंटेंट ऑफ योर स्टोरी. इस कंटेंट के साथ एक और चीज है, एक्सप्रेशंस. Now, when we talk about expressions, we are talking here about how have you put your ideas together. आपने अपने जो क्रिएटिव आइडिया है, स्टोरी को बनाने में जो आपने आइडियाज रखे हैं, उनका सीक्वेंस क्या है. क्या वो एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंसिंग के साथ आपने यूज किया है. सेकेंड, आपने वर्ड्स कैसे यूज किए हैं. हैव यू यूज्ड गुड वर्ड्स इन दिस स्टोरी. गुड. थर्ड, and please never make spelling mistakes while writing your stories. Take care of it very well. And fourth part is, are you writing grammatically correct sentences in your writing task? क्या आप अपने story writing में grammatically correct sentence लिख रहे हैं. Well, I will help you. अगर आप में से किसी को लगता है कि आप grammatical mistakes बहुत करते हैं, तो इस task के लिए there is a simple strategy that I will share. So अभी हमने समझा formatting and the marking scheme. So here 1 mark for title, 4 marks for content and 5 marks आपके expressions कैसे हैं. Now we will see what type of question queue we get to write a story in our exam. So generally हमें 2 टाइप के, we get 2 types of queue questions. पहला होता है जिसमें few lines are given, 1 line, 2, 3 or maybe more lines are given and we have to write a story starting with these lines. And second type होता है जहां पर हमें outline और value points मिलते हैं और based on those value points we have to write a story. So जैसे first type you see this question, we got this question in 2019 last year. Here few lines are given and we have to write a story beginning with these lines. Like, Bunia was a foolish boy who was an attention seeker. He was a woodcutter and would go to deep into jungle to cut trees. So in this question we have to begin this story with these lines. And second type question which we got like in 2018, see this, like value points are given in this question and we have to develop a story based on these value points. इन value points को use करके हम एक story develop करनी है. See this question. Here in this question
you will see outline or value points are given like traveling in metro, tunnel, light went out, and further. So here in this question we have to develop a story connecting these value points so that you have the right sequence of idea and develop story properly. Now we will learn, अब हम सीखेंगे कि हमें स्टोरी बिगिन कैसे करनी है, उसको आगे डेवलप कैसे करना है और उस पर क्लोजिंग कैसे करनी है। चाहे आपने पहले कभी कोई स्टोरी लिखी है या नहीं लिखी है, बट बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी आई एश्योर यू यू विल बी एबल टू राइट and attempt this question easily. So beginning, how to begin? Suppose you get a question where beginning lines are given. So that is simple. You will use these beginning lines to begin your story. So if the question is given where beginning lines are given, use the same lines to begin your story. But अगर आपको question मिलता है where value points are given, no proper beginning line is given. So there यूज सम क्रिएटिविटी, कुछ थोड़ा सोचो और जो पहला बिगनिंग पॉइंट है, जो पहला वैल्यू पॉइंट दिया उससे रिलेटेड कुछ अपनी तरफ से एक दो इंट्रोडक्टरी लाइन आपको क्रिएट करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट वैल्यू पॉइंट इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. सो बाय रीडिंग दिस वैल्यू पॉइंट मुझे तभी दिमाग में आ गया है कि इट्स अबाउट सम जर्नी. सो आई विल मेक a line 2 or 3 to introduce or to begin my story. For example, one is done for you. Last summer, I had to go to Mumbai. I bought a ticket around 10 a.m. I boarded the train. So use these kind of introductory line using the first value point of the value points given. Right? Now, here comes little creativity. So, आपने सीख लिया कि आपको स्टोरी कैसे बिगिन करना है. अब बिगिनिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि हम अपनी स्टोरी को डेवलप कैसे करेंगे, उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे. उससे पहले मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ. जैसे आपको याद है आपको अपनी स्टोरी को कितने वर्ड लिमिट में लिखना है? 150 to 200 वर्ड्स. यू हैव टू राइट योर स्टोरी विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 200 वर्ड्स. नाउ ऑन एन एवरेज लेट्स कैलकुलेट how many words do you write in a line when you are writing your exam? तो let's say आप देखते हैं कि कुछ लोग 10 words लिखते हैं एक लाइन में, कुछ लोग 12 लिखते हैं और कुछ लोग मे बी 15 लिखते हैं. So let's say if you write, अगर आप लिखते हैं 10 word in a line in your exam sheet, so 200 words को पूरा करने में आपको कितनी लाइनें लिखनी होंगी? So on an average around 20. So keep it in your mind while writing your story कि ओवरऑल यू हैव टू राइट 20 सेंटेंसेस टू डेवलप योर स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. इसको और सिंपल बनाने के लिए लेट्स ब्रेक डाउन दिस इन दिस वे. फॉर एग्जांपल, जब आप बिगिनिंग करेंगे, व्हेन यू बिगिन योर स्टोरी, सो डू इट इन 3-4 लाइन्स. डन. नाउ देन आफ्टर दैट व्हेन यू आर कवरिंग द मिडिल पार्ट और आप अपनी स्टोरी को डेवलप कर रहे हैं, देन गो फॉर 10 to 14 लाइन्स. And then at the end you can do the same, do 2-3 lines for the ending as well. और अपने end को तो total आप ये देखेंगे कि you have not lost the track. आप word limit से ज़्यादा भी नहीं गए, आपने बहुत लंबी स्टोरी नहीं लिख दी, आप एक सिस्टम में रहे. अगर आपके दिमाग में ये बात है कि आपको अपनी स्टोरी विद इन 18-20 लाइन्स में रेडी करनी है, कंप्लीट करनी है. So we have completed the line strategy कि हम अपनी स्टोरी के वर्ड लिमिट को ट्रैक करने के लिए we will write 16, 17 और 18 to 20 lines, right? Now, अब जब हम इस लाइन स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो जो मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा लाइनें लिखनी है. You have to write the maximum number of lines, that is 10 to 12 lines you have to put across. Now, when you are writing the मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहां पे आप बिगनिंग के बाद अपनी स्टोरी को आगे डेवलप करते हैं. यू डेवलप योर स्टोरी फर्दर. नाउ हाउ टू डेवलप, आई एम गिविंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर दिस एज वेल. नाउ थिंक ऑफ अ ट्विस्ट. आपने बिगनिंग शुरू कर दिया अपनी स्टोरी का, 2-3-4 लाइन्स आपने बिगनिंग लिखी, अचानक से कुछ हो गया, समथिंग वेंट रोंग. कुछ ऐसा मेंशन करना है विच गिव अ ट्विस्ट टू योर स्टोरी.
आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आए, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो, इससे ये जज होगा कि यू हैव द आइडिया टू राइट इन एग्जाम शीट, यू कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर माइंड, सो दिस विल बी चेक्ड इन योर एक्सप्रेशन। अब उस ट्विस्ट को थोड़ा सा आप लेवरेज कर दो, उसे थोड़ा सा बढ़ा दो 1-2 लाइन में और, देन आस्क अनदर क्वेश्चन फिर से, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अब क्या लिखूं, उसके बाद क्या हुआ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो स्टार्ट कर पाते हैं लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, दे हैव नो आइडिया कि उसे कैसे बढ़ाएं आगे। सो इट्स सिंपल स्ट्रैटेजी, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, फिर क्या हुआ, और एक इवेंट ऑफ सीरीज को इमेजिन करना है अपने माइंड में, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन पुट दोज आइडियाज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस इन स्मॉल एंड क्रिस्प सेंटेंस, ताकि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना हो। उसके बाद जो घटना घटी, वो जो ट्विस्ट आया, उस स्टोरी को अपने एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाओ। फिर एकदम से ऐसा हो गया, फिर अचानक से, whatever you can put across, इस तरह से आप अपनी स्टोरी को डेवलप करेंगे एंड देन गिव एन अप्रोप्रिएट एंड टू योर स्टोरी। दिस इज, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत हैप्पी एंड दें, ये जरूरी नहीं आप बहुत पेनफुल एंड दें, बट इट शुड रिलेट टू योर स्टोरी। अब आप मोटे तौर पर यह समझिए, ब्रॉडली अंडरस्टैंड इट, व्हेन यू आर राइटिंग दिस स्टोरी यू आर एक्चुअली नरेटिंग एन इवेंट। एक इवेंट को आपको नरेट करना है। अब उस नरेशन के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों से आपको बचना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल नाउ, राइट? सो यू आर क्लियर हाउ टू डेवलप योर स्टोरी नाउ, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ। नाउ वी ऑल शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से बचना है, बिकॉज ये वो सेक्शन है जो आपको मार्क को स्कोर करने में बड़ा हेल्प करेगा। सो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल राइटिंग योर स्टोरी। 1, फॉलो द फॉर्मेटिंग, दैट इज डोंट फॉरगेट योर टाइटल, properly begin your story, develop your story and give it a proper ending, right? Second, try to be realistic when you are writing a story. थोड़ा realistic बातें करनी है स्टोरी में। एक इवेंट आप एक्सप्लेन नरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रॉपर इवेंट हो विद अ प्रॉपर ट्विस्ट, सॉरी। देन कीप योर स्टोरी, जो इवेंट है उस स्टोरी में आप बोल रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो, चाहे वो टाइम का सीक्वेंस हो, चाहे वो इवेंट का सीक्वेंस हो, ट्राई टू कीप इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? एंड द लास्ट वन इज गुड एक्सप्रेशंस, मीन्स ट्राई टू यूज बेटर वर्ड्स, हैव अ गुड सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी टू यूज इन योर स्टोरी राइटिंग। नाउ कम्स what you don't have to do or you should avoid doing while writing story. Very important, don't be a supernatural type narrator, like आपके जो कैरेक्टर स्टोरी में आप लिखने जा रहे हैं या आप इवेंट बता रहे हैं वो भूत बंगला टाइप ना हो, just keep it realistic, right? Second, avoid spelling mistakes. So while writing story, have a keen attention that you are not making spelling mistakes, because it will deduct your marks in expression part. Third, again, no grammatical mistakes, because this question is to judge, are you able to write English in a correct way? So avoid grammatical mistakes. हाँ, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक करते हैं, तो फॉर स्टोरी राइटिंग आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्ट्रैटेजी जिसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट, एंड डोंट ट्राई टू मेंशन अ मोरल इन योर स्टोरी। जैसे अक्सर जनरली पीपल राइट आफ्टर द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। डोंट ट्राई टू मेंशन this line, the moral of the story. Your expression will make the reader or the examiner realize that what is the moral of the story. Don't try to mention it in a sentence. Last one, and avoid dialogues. Like you are narrating story, आप story को narrate कर रहे हैं event by event, so please don't add dialogues.
उसने कहा मैं यहां नहीं बैठूंगा. He said I will not sit. No, say he refused to sit. Avoid dialogues. Now I am going to tell for the students who make grammatical mistakes how to avoid grammatical mistakes while writing story. So for those students who make or who feel that they make a lot of grammatical mistakes, so for this particular question, story writing, I am giving you a strategy. आपको मालूम है, since you know that you have to write or narrate the event in past generally. So for narrating in past, we will use past tense. That is, you will use most of the sentence subject plus second form of the main verb. For example, अगर आपको ये लिखना पड़ रहा है कि मैं फ़ोन में बिजी था, अचानक से किसी ने मेरा फ़ोन छीन लिया और मैंने उसका पीछा किया. नाउ इवेंट, देन सेकंड इवेंट, देन थर्ड इवेंट. सो मैं बिजी था, ये आपकी पास्ट पोजीशन को बताता. आई वॉज बिजी इन फोन. वन, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन समवन स्नैच्ड माई फोन. स्नैच का सेकेंड फॉर्म स्नैच्ड माई फोन. आई रैन आफ्टर हिम और I followed him or I chased him. So now what I did is I wrote or I told you these three events in simple sentence. So point and with second form. Now second valid point. Avoid writing long sentences. ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा इंप्रेसिव राइटिंग करने के चक्कर में लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं. And naturally they make more mistakes then. So keep it simple sentence in a short format. This is my suggestion. And the third, very important, the most important you can understand, that is practice. So practice a lot because writing skills gets better by writing itself. लिखकर ही आप अपनी writing skills को better कर सकते हैं. Now I can help you कि आप अपनी writing skills को practice कैसे करेंगे. ऐसे आप कुछ सैम्पल स्टोरीज डाउनलोड कर लीजिए लास्ट ईयर की सॉल्व्ड सैम्पल स्टोरीज, एटलीस्ट 20. रीड वन स्टोरी ईच डे, अंडरस्टैंड द पैटर्न. उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें चॉक आउट कर लीजिए. एंड देन राइट द सेम स्टोरी ऑन योर ओन एंड देन कंपेयर. ग्रेजुअली आई एश्योर यू, I believe, I feel that within few days, a week or two, you will be able to write your own story. So I wish you good luck, happy learning. Keep practicing a lot so that you get a good practice to write story. Now, furthermore, I'm telling you, I'll be making more videos on your English language topics. So for further detail, for further assistance, you can drop a message in the comment box or on my number. I'll be sharing it. And thank you so much. It was happy learning and teaching with you. And keep following my videos, further videos. So take care. Bye bye. Enjoy.